ऐसा। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Mr. Abbas Meghani, have you joined? Yes, ma'am. Okay. Okay. So in 1 minute, sharp at 2:30, we will start. Okay, okay.
की बात please. Okay. So good afternoon to one and all. Good afternoon to Mr. Abbas Meghani and team from Pented Learning application. Good morning, good afternoon to all my faculty colleagues. Good afternoon to all the students. So this is the 6th hackathon we are doing in line in the series. So welcome all to the orientation session of Hackathon Brahmastra, the Markathon 6.0, which is organized for Pented, an online learning application, which is specially focusing on providing online education to the students of 10th standard Gujarati medium and special focus to the subject of mathematics. So we have with us Mr. Abbas Meghani, who is the founder of this particular application. We welcome you, sir, to the launch and the orientation of Brahmastra 6.0. Thank you. It is an opportunity for LJ and students as well to all the faculty who learn. Please mute yourself. Thank you so much. So it is an opportunity for all of us, for LJ, for our students and for the faculties to learn from the tasks that you will be providing to us for this hackathon. So thank you so much, Abbas Bhai. Speaking about hackathon, I'll quickly orient all the students about what hackathon is. So hackathon is basically an activity or a platform or a competition where a task is given to you for a specific period of time. You have either you can make team on yourself. So we provide you the platform where you can make team on yourself, or the team is prepared by the organizing committee. The task is given to you, and that particular task you have to complete, provide innovative, creative solution, do teamwork, and provide those solution to the hackathon provider or the task provider. The task provider or the company evaluates your performance, and based on that, the winners are announced. So over here, what we expect from this marketing hackathon, which we call as Brahmastra. So over here, we invite different companies, or different companies approach us with the issues or challenges or problems the company face in the area of marketing. Right, those tasks we provide to the students so that students can go to the field, okay, work on field and learn various aspects of marketing which are required by the industry, the skills that are demanded by the industry in the area of marketing, and even the other skills as in part of soft skills and managerial skills like teamwork, time management, and all of that. So which the syllabus lacks. So when you apply theory in practice, you gain all those skills. So that is the objective of us conducting always hackathon and doing it for the students. So that is about hackathon. Let me pass on the session to Mr. Abbas Meghani so that he can explain you what Pented Learning application is, what he has as an expectation, and his team has the expectation from our students and us, right? And thereafter, I will discuss the process of this hackathon, what will happen ahead. Okay, so Abbas bhai, over to you. ओके मैम, क्या आप मुझे होस्ट बना सकते हो ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर पाऊँ? Abbas, yes, Abbas bhai, I have given you screen sharing rights. ओके, सो सबसे पहले मैं आप सबको गुड आफ्टरनून कहना चाहूंगा और थैंक्स नेहा मैम कि आपने अच्छी तरह से मुझे इंट्रोड्यूस किया और जो मैकेथॉन था उनका पर्पस आपने समझाया। मेरे सामने 133 पार्टिसिपेंट हैं और ये सारे MBA स्टूडेंट्स हैं और मैं ये सोच रहा हूँ अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो बिजनेस में डेफिनेटली उसे बहुत ही आगे बढ़ना
पड़ेगा। और हमें बिजनेस ओरिएंटेड बनेंगे तब हम कहीं जाके चाइना को बीट कर पाएंगे और अमेरिका को बीट कर पाएंगे और हम सुपर पावर बन पाएंगे। तो आज मेरे सामने वो स्टूडेंट्स बैठे हैं कि जिनके अंदर वो काबिलियत है कि जो अपने गुजरात को, अपने इंडिया को बहुत ही आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी जब मैं इंटरेस्टेड हुआ था एमबीए करने के लिए, और एक्चुअली मैंने किया नहीं था क्योंकि मैंने अभी लास्ट ईयर एमकॉम खत्म किया, क्योंकि मेरा एकेडमी चल रहा था, मेरी स्पीचेस अलग अलग कॉर्पोरेट सेशन में और इवेंट हो रही थी, तो मैं चाहता था कि एमबीए करूं। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, शायद आप सबने पढ़ी हो। अगर आप में से किसी ने वो बुक ना पढ़ी है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट Mr. Abbas, you've got Yeah. mute. ओके। सो वो जो बुक है वो गुजराती में है, उनका नाम है खंभे कोथळो देश मोकळो। इस बुक में 100 MBA जो IIM अहमदाबाद से जो निकले हैं उन 100 स्टूडेंट के इंटरव्यूज है। और अगर आप सबके इंटरव्यूज पढ़ेंगे, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, जिसने बहुत ही अच्छा काम किया, नए नए आइडियाज लाए, नया इनोवेटिव किया, इन लोगों की 100 लोगों के इंटरव्यू जो IIM से निकले, जो जॉब कर रहे हैं नहीं, वो जो बिजनेस कर रहे हैं उनके। सो अगर आप ये 100 लोगों के इंटरव्यू आप पढ़ोगे तो आपको सब में एक चीज कॉमन निकलेगी। अगर आप इंटरव्यू पढ़ेंगे तो वो चीज जो है वो क्या है? नंबर 1, कम्युनिकेशन एंड कन्विंसिंग पावर। ये दोनों, जितने भी 100 बंदे थे, सारे के सारे बंदे अगर आप देखो, अगर उनको आप रीड करो, उनका इंटरव्यू आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये सब की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी थी और वो किसी को भी कन्विंस कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था और वो लोग IIM से निकले तो पहले जॉब की, फिर बिजनेस का आइडिया आया, फिर इन्वेस्टर को ढूंढा, पैसे भी ढूंढे, इन्वेस्टर को भी कन्विंस भी किया, फिर बिजनेस भी शुरू किया, उसमें जो जो हर्डर्स आए, जो जो बग आए वो सोल्व किए और वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। अगर मैं आप सबसे विनती करता हूँ, अगर ये बुक आपने नहीं पढ़ी, खंबे कोथळो देश मोकळो, ये गुजराती में, शायद अगर इनका हिंदी या इंग्लिश में हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये गुजराती में है, ठीक है। तो ये बुक अगर आप पढ़ोगे तो मैंने आपको कहा कि कम्युनिकेशन और कन्विंसिंग पावर अगर आप में है तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में कहीं भी जाओगे, कोई भी काम करोगे, आप सक्सेसफुल रहोगे। तो इसी सोच को लेकर हमने आपके लिए ये हैकेथॉन बनाया है कि हमारा जो ये मकसद है पेंटेड लर्निंग का, उसमें आपको 2 टारगेट दिए जाते हैं। नंबर 1 कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी है, जो बहुत ही आसान टास्क है। शायद अगर आप 10th के बच्चों को अगर आप कहो कि आपको इतनी एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी है अपने दोस्तों से और इस तरह से आपको विनर डिस्ट्रीब्यूट घोषित किया जाएगा और आपको इनाम मिलेगा, तो शायद ये 10th स्टैंडर्ड का बच्चा या 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है। और हमने भी किया है। फॉर एग्जाम्पल हमें मालूम है कि बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है कि जिसको हम शेयर करते हैं तो हमें कैशबैक मिलता है या हमें कोई प्राइज मिलती है तो हम कर लेते हैं। तो ये बहुत ही छोटा टास्क है MBA स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा टास्क है रिसर्च करना, एनालिसिस करना, लोगों की नीड क्या है ये समझना, ये जो शायद मेरे जहन से, अगर आप MBA लेवल के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये बड़ा टास्क हो सकता है, क्योंकि एनालिसिस करना, क्योंकि एनालिसिस करने से हमें पता चलता है कि कौन सी प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम पता चल गई तो हम उनके सॉल्यूशन के लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो बेसिकली आपको 3 काम करने हैं। नंबर 1, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी है, ये तो बहुत ही सिंपल फंडा है, ये कोई भी कर लेगा। नंबर 2, एनालिसिस करना, ये वही कर पाएगा जो बहुत ही घुसेगा इस प्रोजेक्ट में, अंदर डूबेगा, सोचेगा। बहुत ही अच्छे एक राइटर है जिसका नाम है विनोद जोशी, गुजराती आज के नरसिंह मेहता अगर कोई है तो वो विनोद जोशी है। हम मीटिंग में बैठे थे तब विनोद जोशी ने एक बहुत अच्छी बात की थी उनके लेक्चर में। अगर आपने नहीं सुने तो प्लीज सुनिएगा, अगर आपको लिटरेचर में अगर इंटरेस्ट है तो। लेकिन एक चीज हमें उससे सीखने वाली है। विनोद जोशी ने एक बार अपने लेक्चर में कहा था कि अगर तुम कोई चीज कर रहे हो और आपके दिमाग में उनका पंखा, फैन अगर घूम नहीं रहा है ना, तो समझ लेना आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि आज हमने जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, शायद हम 15-20 मिनट के लिए और डिस्कशन करेंगे। मैं आपको पेंटेड लर्निंग एप्लीकेशन क्या है, आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, ये सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ।
अगर ये मीटिंग खत्म होते ही अगर आपके जहन में, आपके दिमाग में इस मीटिंग के रिलेटेड अगर कोई ख्याल नहीं आता, अगर आपके दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं आती कि आप किस तरह से अच्छी तरह से काम कर पाओगे, या आप किस तरह से ग्रुप में अच्छा वर्क कर पाओगे या अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, अगर आप ग्रुप डिस्कशन भी नहीं करते, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी इसमें 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी 100% इन्वॉल्वमेंट होगी तो डेफिनेटली ये एप्लीकेशन को समझने के बाद, ये सेशन अटेंड करने के बाद आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे, आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे ये पहले से अभी से आप प्लानिंग कर सकोगे। ठीक है, तो ये फैन जो है, यानी कि फैन क्यों, क्योंकि जब हम फैन की स्विच बंद करते हैं ना तो वो डायरेक्ट स्टॉप नहीं हो जाता, फैन आहिस्ता 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 स्टॉप होता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से मैं ये चाहता हूँ अगर पॉसिबल हो तो हम कोशिश करेंगे कि ये मीटिंग, ये सेशन जब भी खत्म हो जाएगा, हमारा ये जो फैन है ना वो एसी की तरह तुरंत बंद नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा घूमता रहना चाहिए। चलो इसी होप से हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। जब भी आप बोर होने लगो तो प्लीज आप मुझे चैट कर सकते हैं, क्योंकि मैं और भी वेज ढूंढ लूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, तो आपको मैं शायद अच्छी तरह से एंटरटेन कर पाऊँ। सो अगर सेशन आपको बोरिंग लगता है या कोई भी दिक्कत आती है, बिंदास चैट कीजिए, क्योंकि हम सब एक ही एज के हैं। सो नेहा मैम और फैकल्टीज बैठे हैं, लेकिन आप उनकी चिंता मत कीजिएगा, मैं मैम को रिक्वेस्ट कर दूंगा कि वो आपको कुछ नहीं कहेंगी। सो आप बिंदास का शेयर कर सकते हो, आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है सेशन के दरमियान, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ सुझाव देना चाहते हो, तो बिंदास अपना माइक शुरू करके आप मुझे आंसर देते रहना। ठीक है, नंबर 2, और मुझे क्या है कि मैं अक्सर सेमिनार लेता हूँ, तो सेमिनार में मेरी आदत है कि मैं ऑडियंस से और जो मेरी ऑडियंस है उसे मैं फीडबैक लेता रहता हूँ, यानी उसका सर हिलाना। अब तो सामने तो नहीं बैठे, तो आपका सर हिल नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, या सिर्फ मोबाइल शुरू है, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं, तो ये मुझे ऐसा नहीं पता चलता है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप चैट में थंब दिखा सकते हो, ओके कह सकते हो, राइट कह सकते हो, तो क्या है कि हम थोड़ा इंटरेक्ट, ये सेशन जो है 2 वे कर पाएंगे। चलो, तो सब सेशन के लिए रेडी है? मुझे सबके आंसर चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 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 अभी तक ऐसा लग रहा था किसी शमशान में बैठे बैठे बोल रहा हूँ, अब लग रहा है कि लोगों के सामने बोल रहा हूँ। चलो, आई एम हैप्पी, थैंक यू। सो मैं अपने स्क्रीन शायद में चलो, अब आपको शायद मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो ये जो है हमारी पेंटेड लर्निंग एप्लीकेशन है। तो अब पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई बहुत सारी एप्लीकेशंस है मार्केट में, तो पेंटेड एप्लीकेशन में ऐसा क्या नया है, किस तरह का कॉन्सेप्ट है और हम क्या करना चाहते हैं। तो आप सब लोग जानते हो कि बहुत सारी एप्लीकेशन है, लाइक बायजूस, हम सब ने नाम सुना है, शाहरुख खान को देखा हुआ है, इंडिया की जर्सी में यहाँ पर लिखा हुआ बायजूस, या आईपीएल की किसी भी टीम में देखोगे तो कहीं ना कहीं बायजूस मिल जाएगा। तो बायजूस एक वेल नोन कंपनी है, ओके। लेकिन बायजूस जो कंपनी है वो काम करती है सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए या हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि उनके बेसिकली जो वीडियोस होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, बाकी हिंदी में डब होता है। अब क्या होता है, हिंदी में जब डब होता है तब पीछे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा होता है वो इंग्लिश में लिखा रहता है, तो हिंदी मीडियम के बच्चों को और गुजराती मीडियम के बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है आपात कोण। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बायजूस जो है सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, क्योंकि हिंदी मीडियम अगर आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, आप हिंदी कर सकते हो, आप गुजराती कर सकते हो, लेकिन जो एनिमेशन रहता है बैकग्राउंड में वो इंग्लिश ही रहता है, और बहुत सारे वर्ड ऐसे इंग्लिश में होते हैं जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा समझ पाएगा, लेकिन हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम के बच्चे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बायजूस जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए। एक चीज, नंबर 2, ये बहुत ही बड़ी बात है कि बायजूस जो काम करता है वो सोसाइटी के 3 लेवल होते हैं। आप एमबीए स्टूडेंट हो, आप सबको मालूम है, एक तो होता है लो लेवल, एक होता है ये मीडियम लेवल, एक होता है हाई लेवल। जो हाई लेवल होता है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी है, जो 1 साल के बायजूस जैसा सॉफ्टवेयर खरीद के 50-60 हजार रुपए दे सकते हैं, ऐसे ही लोग बायजूस लेते हैं ज्यादातर लोग। बाकी जो लोग बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे वो लो लेवल हो या मीडियम लेवल हो, तो वो क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ होते हैं 5-10% जो ऐसा करते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, तो वही लोग खरीदते हैं जो कैपेबल होते हैं, यानी कि बायजूस हम ये कह सकते हैं नंबर 1 वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है। बायजूस हो, वेदांतु हो, टॉप स्कोरर हो, आप किसी को भी ले लीजिए, ठीक है।
और नंबर 2 कि इंग्लिश मीडियम के अलावा वो उन लोगों के लिए काम करता है जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और जिनकी परिस्थिति बहुत अच्छी है। ओके, ये एक चीज हो गई। अब जो हमारे गुजरात में दिक्कत है वो क्या दिक्कत है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। जो रीजन हमारा पेंटेट का क्या था, तो जो लास्ट बोर्ड एग्जाम हुई थी उसमें 3,17,000 बच्चे जो है वो मैथ्स में फेल हुए थे, हमारे गुजराती मीडियम के गुजरात के बच्चे 3,17,000। अब मजे की बात यह है कि ये 10 लाख में से थे। दूसरी मजे की बात, हमने जब ये पेंटेट का इनॉग्रेशन प्रोग्राम किया था तब हमने एजुकेशन इंस्पेक्टर को बुलाया हुआ था, तो उनको हमने बुलाया था, उनको इनवाइट किया था एज ए चीफ गेस्ट, और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, जो आप न्यूज़पेपर में भी देख पाओगे उसमें भी लिखा हुआ है कि ये जो बोर्ड के बच्चे थे वो 3 लाख नहीं, एक्चुअली 6.5 लाख बच्चे फेल हुए थे, 10 लाख में से 6.5 लाख। अब इतने सारे बच्चे फेल हो गए तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 8 मार्क्स से लेकर 18 मार्क्स तक ग्रेसिंग दिया। इतने 8 से अब मानो कि 33 मार्क्स तो पासिंग है, 100 मार्क्स का पेपर हो तो 33 मार्क्स पासिंग है। अगर 8 से 18 मार्क्स ग्रेसिंग देने के बाद भी अगर 3,17,000 बच्चे फेल होते हो तो आप समझ सकते हो कि हमारे गुजराती मीडियम के बच्चों का मैथ्स कितना वीक है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात, कितने 3,17,000, ये इतना कम नंबर, पहले थे 6.5 लाख, अब 6.5 लाख को कैसे कम किया, तो भाई ग्रेसिंग दे दिए, 8 से लेकर 18 तक ग्रेसिंग दे दिया, इसलिए कितने हुए, तो क्या अभी 3,17,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ये 3,17,000 बच्चे बचे थे वो ऐसे बच्चे बचे थे कि उनके 15 मार्क्स से भी कम थे 100 में से। अगर 15 से ज्यादा होते तो अगर उसमें 8 किए जाते तो वो पास हो जाता। तो आप समझ सकते हो कि हमारी गुजराती मीडियम के बच्चों की हालत कैसी है। अब ऐसी हालत क्यों है, ये एक सेकंड क्वेश्चन। इसकी अगर क्योंकि मेरा खुद का अल्फा एकेडमी है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं सेमिनार लेने के लिए 450 से ज्यादा पूरे गुजरात में और इंडिया में मेरे सेमिनार हो चुके हैं, तो मुझे आइडियाज है। क्या होता है अक्सर गांव में ये होता है कि टीचर के पास जो गांव में टीचर्स होते हैं उनके पास गाइड रहती है। गांव में क्या, सिटी में अगर कोई स्कूल गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो जिनकी फीस 15,000 से कम हो, तो उनके टीचर्स क्या करते हैं, उनके पास एक गाइड रहती है और वो गाइड से वो क्या करते हैं, सम बोर्ड पे लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट को क्या करना होता है, टीचर ने जो लिखा होता है वो सिर्फ उतारना होता है, जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी नॉलेज, राइट। आप समझ रहे होगा, रटना जिसे कहते हैं, उसे सिर्फ लिखना होता है। अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन भी पूछ ले तो टीचर ये कहते हैं कि मैं तुम्हें कल समझाऊंगा, अब कल कभी होती नहीं, तो डाउट कभी सोल्व ही नहीं होता। ये एक रीजन है। नंबर 2, अब ये क्या होता है, कोर्सेज बहुत लेंदी हो गए, क्योंकि पहले गुजरात बोर्ड था, अब एनसीईआरटी बोर्ड हो चुका है, तो एनसीईआरटी में कोर्सेज बहुत लेंदी है। तो अब टीचर के पास भी टाइम बहुत कम है, क्योंकि उसे आधा या पौने घंटे का एक लेक्चर मिलता है, उसे पूरा सिलेबस खत्म करना होता है, सारे सम करवाने होते हैं, वो भी 9 महीने में, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं रहता, क्योंकि बाद में तो एग्जाम की प्रिपरेशन, गोल शुरू हो जाते हैं, ये सब शुरू हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, तो कि ये गुजराती मीडियम वाले बच्चों को जो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सब खत्म करवाने की दिक्कत में अब उसे सब कुछ बाउंस हो जाता है, उसे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होते। नंबर 3, अब जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स पढ़ रहे हैं उसे पता होता है कि इसमें पाइथागोरस का थ्योरम आता है, लेकिन रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है ये उसे नहीं मालूम, उसका फंडा उसे पता नहीं होता। तो दिक्कत क्या होती है, अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दे तो अब बच्चे ये समझने लगते हैं कि हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बाहर से पूछे गए। वो सीबीएसई वाले और आईसीएसई वाले को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के ट्रेन होते हैं वो बच्चे। लेकिन गुजराती मीडियम के बच्चों को क्या है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पकड़ के रखनी है और उसमें जो एग्जाम्पल दिए, उसमें जो सम किए वही पकड़ के रखना है और आगे नहीं बढ़ना है। ये साइकोलॉजी उस बच्चों की होती है। तो ये रीजन हमें पता चले और इतने सारे बच्चे फेल हुए, तो मुझे मालूम था 2019 दिसंबर में कि जनवरी में यानी कि 2021 में लॉकडाउन आने वाला है, 2020 में लॉकडाउन आने वाला है। तो आप सोचोगे कि कैसे पता चला आपको, क्या आप अंतर्यामी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। मेरा भाई चाइना में एमबीबीएस कर रहा था, उनके 5 साल खत्म हो गए थे, उनकी इंटर्नशिप शुरू हुई थी, ठीक है। अब चाइना में कोरोना फैल चुका था दिसंबर 2019 में, तो हमने क्या किया, अपने भाई को बुला लिया, वो यहाँ पर आया 15 जनवरी को, क्योंकि 15 दिन वो आइसोलेट रहा, सब टेस्ट हुए नेगेटिव, सब टेस्ट आए, 15 दिन फिर भी आइसोलेट रहा दिल्ली में, फिर वो यहाँ भावनगर आया। ओके, अब
पहले दिन जो हमारी डिस्कशन हुई तो क्या हुई कि मेरे भाई ने कहा कि कोरोना फैलने ही वाला है और इनकी कोई दवा है ही नहीं, तो अब लॉकडाउन लगेगा शायद 2-3 महीने के बाद, लेकिन लगेगा सही। तो अब हमें मालूम था कि शायद ये मार्च में कोरोना फैल चुका होगा इंडिया और इंडिया में लॉकडाउन लग जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि अगर इंडिया में लॉकडाउन लगता है तो 3 से 4 महीने घर पे बैठना रहा मेरा, तो मैं क्या करूंगा। तो मुझे आइडिया आया, क्योंकि उसके पहले साल मेरे एकेडमी में अच्छा रिजल्ट था लेकिन बहुत सारे बच्चे फेल हुए थे, तो मुझे ये मालूम था। तब मेरे जहन में चल रहा था कि भाई हमें एक एप्लीकेशन डेवलप करनी चाहिए गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए। तो ये बैकएंड में चल रहा था, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना एक एप्लीकेशन डेवलप की जाए गुजराती मीडियम के 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, कि जो उनके कॉन्सेप्ट भी सोल्व करे, वो भी बायजूस की तरह, नंबर 1, और नंबर 2 उससे अच्छा, और नंबर 3 सबसे सस्ता। यानी कि अच्छा भी होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए। और मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि गुजरात में अगर किसी खेडूत का भी बच्चा हो, रिक्शे वाला का भी बच्चा हो, किसी मजदूर का भी बच्चा हो, तो वो घर पे बैठकर पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और उसे हम मॉडर्न एजुकेशन देंगे। तो हमने क्या किया, तो हमने एक एप्लीकेशन डेवलप की। ये मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। मैं एनिमेशन वीडियोस का आपको सैंपल भी बताऊंगा कि हमारे में किस तरह के एनिमेशन है और हमने टॉपिक को किस तरह से सिंपल किया, ये मैं सब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारी एप्लीकेशन में मेन 8 फीचर्स है, उसमें से पहले 4, जो पहला सॉल्यूशन है वो मैं आपको डिप में समझाने वाला हूँ, दूसरा है लाइव लेक्चर, तीसरा है एमपी क्वेश्चन, और फिर है आस्क योर डाउट, और उसके बाद है क्वेश्चन पेपर, फिर उसके बाद है ब्लूप्रिंट, फिर उसके बाद है पेपर सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद है टेस्ट। तो ये 8 हमारे मेन ऑप्शन है, और बाद में 9वां है जो स्कैन, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, सॉल्यूशन। अब क्या होता है, चलो सब जाग रहे हैं, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है ना, हाँ के ना। Yes, sir. Yes, sir. Sir. यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि अब आप जहां पर भी जाओगे आपको ये चीज समझानी है, तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा कि किस तरह से हमारी एप्लीकेशन में कौन सा आइकॉन क्या काम कर रहा है, ताकि आपको आसानी हो जाए। ओके, ठीक है। चलो आज एक दूसरी चीज ये करनी है कि आप सबको है ना अपने मोबाइल में पेंटेड एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखनी है, और अगर उसमें कुछ समझ में ना आए तो हमारा एक ग्रुप भी है, या फिर आप नया मैम से पूछ लीजिए, या फिर उस ग्रुप में क्वेश्चन डाल दीजिए। तो आपके जो भी डाउट्स हो गए, ये हमारे साथ जो एलजे की फैकल्टीज है वो भी आपके डाउट सोल्व करवाएंगे, और मुझे भी पूछेंगे तो मैं भी आपको सोल्व करवाऊंगा। यानी कि हम एक टीम है, और ये हमारा जो आज 142 स्टूडेंट्स या 143 पार्टिसिपेट जो भी है, ये हम आज के ये सिर्फ हैकेथॉन के लिए नहीं जुड़ेंगे, हम लाइफ टाइम जुड़ेंगे, क्योंकि आज से अगर हमारी बॉन्डिंग हुई तो हम फ्यूचर में कभी भी अगर आपको मेरा काम पड़ता है तो बिंदास हमारा रिलेशन रहेगा, आप कभी भी याद कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि आप जो जिन लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस है उसे हम प्लेसमेंट भी देंगे। ठीक है, आपका एमबीए खत्म होने के बाद अगर आप एमबीए करते करते पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो वो पार्ट टाइम आपको जॉब भी देंगे जिनका परफॉर्मेंस सही रहेगा। फिर आप पेंटेड के साथ जुड़े रहोगे, ठीक है, और हम सब आगे मिलके गुजरात के बच्चों के लिए और रीजनल जो गांव है छोटे छोटे, वहां पर हम एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन फैलाने के लिए हम साथ में मिलके काम करेंगे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो 4 दिन या 5 दिन के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक हैकेथॉन या इसे मार्केट मैराथन कैसे सिर्फ इस हद तक सीमित नहीं है, हम इसे बहुत दूर तक ले जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा 2025 तक इंडिया की 14 रीजन में सारे सब्जेक्ट, सारे स्टैंडर्ड के लिए प्रिपेयर करने का है। ठीक है, ये मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको सब कुछ ध्यान से समझना है और आपको एक्सप्लेन करना है, तो समझ लीजिएगा। तो पहला है सॉल्यूशन। तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि मैथ्स में 10th स्टैंडर्ड में कितने चैप्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स में 10th स्टैंडर्ड में 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर। अगर मान लीजिए बच्चा, यस, किसी को कोई डाउट है क्या? स्क्रीन में नहीं दिख रहा सर, आपके स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, लाइट नहीं दिख रही। ओके, दूसरे स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है? No, sir. No. नहीं अब्बास भाई, वो आपकी स्लाइड नहीं दिख रही है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो ऑन दैट स्लाइड। ओके, एक मिनट। आई थिंक यू हैव टू क्लिक एनेबल एडिटिंग। अच्छा, ओके, थैंक यू मैम। या शायद अब दिखाई दे रही हो तो प्लीज मुझे। या नाउ आई थिंक इट इज विजिबल। चलो, तो अब तक ऐसे ही चल रहा था। चलो, थैंक यू।
किसने कहा ये पहले, सबसे पहले किसने बताया? प्लीज आप अपना नाम बताओगे? हर्ष त्रिवेदी। हाँ हर्ष भाई, थैंक यू। और ये welcome। भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि बोलू ना, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ये बोलू या ना बोलू, कुछ कहूँ या ना कहूँ, लेकिन जो पहले हिम्मत करता है ना वही आगे बढ़ता है। सो हर्ष भाई वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा। चलो तो ये सारे मैं 8 ऑप्शन फिर से रिपीट कर देता हूँ। सो ये था सॉल्यूशन, फिर है लाइव लेक्चर, आईएमपी क्वेश्चन, आस्क योर डाउट, फिर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है, ब्लूप्रिंट है, ठीक है, फिर टेस्ट है। तो हम पहला जो हम समझने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब आगे बात बढ़ाते हैं। मैथ्स में कितने चैप्टर में भूल गया? मुझे भूलने की आदत है, सो मुझे कोई बताएगा? 15 जो चैप्टर है उसमें हर चैप्टर में एक्सरसाइज होती है। अगर जो गुजराती मीडियम से पढ़ते हैं उसे पता होगा स्वाध्याय, और इंग्लिश मीडियम से जो पढ़े उसे पता होगा एक्सरसाइज। यानी कि 1.1 होता है, 1.2, 1.3 और 1.4 इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर बच्चे ने 1.1 ओपन किया तो उसमें जो पहला वीडियो होगा वो कॉन्सेप्ट समझाएगा। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, पहला जो है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझा रहा हूं उसे, ठीक है। मान लीजिए कि वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर है, तो ठीक है। तो अब पहला 1.1 ओपन होगा, उसमें पहला वीडियो जो होगा वो ये समझाया जाएगा कि रियल नंबर क्या होता है, किसे रियल नंबर कहते हैं, किसे रैशनल नंबर कहते हैं, किसे इरेशनल नंबर कहते हैं। यानी अगर गुजराती में बताऊं तो समय संख्या किसे कहते हैं, असमय संख्या किसे कहते हैं, ये सब कुछ उसमें एनिमेशन के जरिए से एक्सप्लेन किया होगा। ये वीडियोस जो होंगे सारे एनिमेशन वाले होंगे, ताकि बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब सवाल ये होता है कि कैसा एनिमेशन होगा? सिंपल एनिमेशन होगा। हमें कैसे पता चले कि किस तरह का एनिमेशन है? तो मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूं। इसमें जो 5th चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़े उसे याद होगा एपी। अब आप भूल गए होंगे क्योंकि बहुत सारे साल हो चुके हैं, एपी क्या क्या किसे कहते हैं और समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, आप भूल गए होंगे, ठीक है। AP arithmetic progression. यस डेफिनेटली, यस यशस्वी बेन, यस Yashvi. यशवी, सॉरी, ओके It's okay. यस। तो अब मैं जो आपको वीडियो बताने वाला हूँ, तो आपको वो अगर जो भूल गए, ये सिस्टर को तो याद है, लेकिन जो भूल गए उसे एक ही मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा, और रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है ये भी समझ में आ जाएगा, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, जब हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे ना, तब हमको ये समझ में नहीं आता था कि साइन थीटा की फॉर्मूला क्या, कोस थीटा की, और कॉमर्स वाले सब मुझ जैसे हैं, ठीक है ना, मैं भी कॉमर्स का हूँ। अब साइन थीटा और कोस थीटा ट्रिग्नोनोमी जब आता है, त्रिकोणमिति, तो आधे से ज्यादा ऐसा होता है जो ऊपर से ही जाता है, समझ में नहीं आता कि रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, किस तरह से सोल्व करना है। तो अब मैं जो आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ उससे शायद आपको ये दिक्कत नहीं होगी, और आप भी इतने साल के बाद भी अच्छी तरह से उसे समझ पाओगे। तो वीडियो तो वैसे 8 या 9 मिनट का, लेकिन मैं कट करके 2 पोर्शन ही वीडियो के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्या साउंड आ रही है? वीडियो ही नहीं देख रही है, Video नहीं आ रही है सर, ऑडियो इज वीडियो कमिंग. नहीं आ रही है, वीडियो नहीं दिख रही है सर। ओके चलो सुन अभी रही है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके मुझे स्क्रीन अलग शेयर करनी होगी, 1 मिनट। Hi, Buzz, you'll have to stop this screen share and again do it. Yes sir, now it is visible. अब आ रही है ना? Yes sir. हाँ सर। यस समांतर साउंड भी आ रही होगी शायद। यस શેની ઘણી બધી જગ્યાએ ઉપયોગ થાય, જેવી રીતના તમે દાદરો ચડીને તમારા ઘર ઉપર ચડો છો તો ત્યાં પણ સમાંતર શ્રેણી છે। જેવી રીતના તમે એક ડિઝાઇન જોવો છો કે જેમાં નીચે 5 લાકડા, એની ઉપર 4 લાકડા, એની ઉપર 3 લાકડા, એની ઉપર 2 લાકડું, એની ઉપર 1 લાકડું, તો આવી ડિઝાઇન હોય એ પણ સમાંતર શ્રેણી છે। તો સમાંતર શ્રેણી ઘણી બધી જગ્યાએ હોય। એક એક્ઝામ્પલ આપું, માની લો ભાઈ તમે અમદાવાદ ફરવા નીકળ્યા, આપણે અમદાવાદી ભાષામાં બોલીએ બરાબર ને, અમદાવાદ ફરવા નીકળ્યા, બસ સ્ટેશને ઉતરીને તમે રિક્ષાવાળાને રોક્યો અને કીધું રિક્ષાવાળા ભાઈ ઉભા રહ્યો, એટલે રિક્ષાવાળા ભાઈ ઉભા રહ્યા અને પૂછ્યું કहाँ जाना है, તમે કીધું કે ભાઈ SG રોડ લઈ લો, SG રોડ જવું છે, કેટલું ભાડું લેશો? એટલે રિક્ષાવાળો એમ કે, ધ્યાનથી સાંભળજો, રિક્ષાવાળા ભાઈ એમ કે હમ ભાઈ મીટર से चलेंगे। તમે પૂછો ભાઈ તો ભાઈ મીટરના પૈસા મારે કેવી રીતના દેવાના, કેવી રીતના તમે ભાડું ગણશો? તો સાંભળજો ધ્યાનથી, समांतर श्रेणी આવશે। રિક્ષાવાળા ભાઈ કહે છે કે पहले किलोमीटर के हम 10 रुपये लेंगे, बाद में हर किलोमीटर के हम 8-8 रुपये लेंगे। તમે કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, રિક્ષામાં બેસી ગયા। ધ્યાનથી સાંભળજો, તમે રિક્ષામાં બેઠા બેઠા જાઓ છો, તમારું ધ્યાન મીટર ઉપર છે, મીટર ઉપર આવ્યું ટીંગ, 1
એટલે તમને ખબર પડી ગઈ 1 કિલોમીટર થયું ભાઈ, તમારે કેટલા રૂપિયા દેવા પડે? 1 કિલોમીટર થયું એટલે 10 રૂપિયા. હું અહીંયા લખું છું 1 કિલોમીટર નીચે 10. સાંભળજો, મજા આવશે ભાઈ. તમે ઘડીક વાર બેઠા ને જ્યાં 2 કિલોમીટર થયું, મીટરમાં દેખાણું આપણી રિક્ષા 2 કિલોમીટર ચાલી ગઈ. ઓકે, હવે કેટલા રૂપિયા દેવાના? પહેલા કિલોમીટરના 10 રૂપિયા દેવાના હતા, પછી દરેક કિલોમીટરના 8 રૂપિયા દેવાના. તો હવે બીજા કિલોમીટરના તમારે 18 રૂપિયા દેવાના ને? હા કે ના? સમજાઈશ ને? હવે તમે રિક્ષામાં બેઠા, ડૂમ 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 ડૂમ, 3 કિલોમીટર હાલી ગયું ભાઈ. અહીંયા તમને મીટર ઉપર દેખાણું કિલોમીટર નંબર 3. તો હવે 18 માં 8 ઉમેરો એટલે કેટલા થાય? 26 રૂપિયા થયા, બરાબર ને? પાછા તમે બે કાઢ્યા ભાઈ, રિક્ષા તમારી આગળ ચાલતી રહી, 8 રૂપિયા પાછા ઉમેરા, 4 કિલોમીટર થઈ ગયા. 4 કિલોમીટર હવે કેટલા દેવા પડે? 26 માં 8 રૂપિયા ઉમેરી દો એટલે કેટલા થયા ભાઈ? 34 રૂપિયા થયા ભાઈ. પછી હજી એસજી હાઈવે નથી આવ્યો ભાઈ, ગાડી તમારી હાલે 5મું કિલોમીટર તમારી રિક્ષા હાલી ગઈ, મીટર ઉપર લખેલા આવ્યું ટીંગ 5. હવે કેટલા દેવાના? તમે કહો સાહેબ 34 માં પાછા 8 ઉમેરી ગયો એટલે 42 રૂપિયા. ઓકે બેટા, એસજી રોડ આવી ગયો, તમે નીચે ઉતર્યા, ખીચામાંથી 42 રૂપિયા કાઢીને રિક્ષા વાળાને આપી દીધા. રિક્ષા વાળો क्या बात है यार, तुम तो बड़े पढ़ा लिखे इंसान हो, अच्छी बात है, तुमने कैसे गिन लिया? तो તમે એમ કહેશો કે અમને છે ને સ્કૂલમાં સમાંતર શ્રેણી શીખવાડે છે. સમાંતર શ્રેણીમાં તમે કહી શકો કે ભાઈ પેલું પદ 1 કિલોમીટર ચાલ્યા એટલે મારે તમને 10 રૂપિયા દેવા પડે, અને બીજા 4 કિલોમીટરના 8 રૂપિયા લખે તો 8 ચોક 32, 32 ને 10 કેટલા થાય? 42, એટલે મારે તમને 42 રૂપિયા દેવા પડે. જ્યારે આપણને રકમ સમજાશે, અને રકમ સમજવા માટે આપણે જઈએ છીએ હવે જંગલમાં. અરે યાર, જંગલમાં તો વાવાઝોડું છે, કેટલી જબરદસ્ત હવા જાય છે, ઝાડ પર હું બચી ગયો રાઈટ. હવે જુઓ, આ ઝાડ જે છે, આ નારિયેળી જે છે એ પડીને હેઠી આવી છે. હવે આપણને દાખલામાં એમ કહ્યું છે કે આ જમીન સાથે જે નારિયેળીનો ભાગ, જે ઉપરનો ભાગ જે સ્પર્શે છે, ત્યાં 30નો ખૂણો બને છે. અહીંયા કેટલાનો ખૂણો પડે છે? 30નો. હવે સમજો, મજા આવશે. હવે ઝાડની ટોચથી થડ 8 મીટર દૂર છે. કેટલા મીટર દૂર છે? 8 મીટર. સમજો કેટલા મીટર દૂર છે? જુઓ, 8 મીટર દૂર છે. ઓકે મારા મિત્રો, હવે સમજો, મજા આવશે. હવે આ જે છે 30, એની સામેની બાજુ આ ઊભી લાઈન થઈ, આ આડી લાઈન છે એ પાછળની બાજુ થઈ, અને અહીંયા કાટખૂણો પડે છે, એટલે કાટખૂણાની સામેની બાજુ આ જે છે ને કર્ણ કહેવાય. એટલે આને નામ આપી દઉં છું A, B અને C. ઓકે, હવે આપણે ઝાડની ઊંચાઈ શોધવાની છે. ઝાડની ઊંચાઈ શોધવા માટે આપણે આ AB શોધવું પડે અને AC શોધવું પડે. પછી બંનેનો શું કરવો પડે? સરવાળો કરવો પડે, બરાબર ને? તમે કહો યસ સર. ઓકે, તો આપણે લખીએ ઝાડની ઊંચાઈ બરાબર AB વત્તા AC. ઓકે, વત્સ ધોરણ 10 ગણિત કઠિન લાગે છે? गुजराती शो पेंटेड थी पढ़ो. आई होप के आपको ये जो है एनिमेशन वीडियोस वो अच्छे लगे होंगे. नाइस सर. Nice, really nice. यानी कि Attractive. आपको अच्छी तरह से ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा कि वो क्या ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में कैसे यूज होता है और किस तरह से करना होता है, ये आप सब समझ गए होंगे. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे एनिमेशन वाले वीडियोस हैं. तो इन एनिमेशन वीडियोस की सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड में हो या ना हो, वो 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ा हो या 9th स्टैंडर्ड का पढ़ा हो या कुछ भी हो, वो आसानी से समझ पाएगा, क्योंकि इतना सिंप्लीफाई हमने कर दिया है, इतना आसान कर दिया है कि हम अच्छी तरह से उसे मैथ समझाएंगे. ओके, तो इस तरह से 900 से भी ज्यादा वीडियो है. अब आपको ये ख्याल आया होगा कि सर क्या आपके वीडियोस हैं? नहीं, सिर्फ मेरे वीडियोस नहीं है, इसमें नेहा मैम पटेल के वीडियोस है, उर्वेश सर राठौड़ के वीडियो है, विपुल सर के वीडियोस है, नवनीत सिन्हा रिटायर्ड जो कलेक्टर है, डेप्यूटी कलेक्टर, उनके भी वीडियोस है. तो इन सारे टीचर्स के वीडियोस है. अब आप ये पूछेंगे कि मेरा इस वीडियो क्यों है? क्योंकि ये मैंने आपको YouTube से दिखाया और ये सब मैंने शूट किया हुआ था लॉकडाउन के टाइम पर, क्योंकि मैंने 3 महीने में लॉकडाउन के टाइम पर 750 से ज्यादा वीडियो शूट कर दिए थे. ठीक है, तो बाद में क्या किया कि जो बाकी वीडियोस थे वो टीचर को दिया, और बाद में कुछ वीडियोस मेरे निकालता गया और दूसरे फैकल्टीज ने जो वीडियो शूट किए थे वो मैं इसमें डालता गया. तो इस तरह के ये 4-5 फैकल्टीज के वीडियोस है. ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन. तो आई होप आपको पहला आइकॉन समझ में आ गया होगा. सॉल्यूशन में क्या है? 15 चैप्टर है,
हर चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज होती है और उन एक्सरसाइज के अंदर उनके वीडियोस है, वो भी एनिमेशन वाले, जो कोई भी बच्चा आसानी से समझ पाएगा। ठीक है, चलो इतना क्लियर है पहला? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, थैंक यू sir. वेरी मच। और दूसरा जो है वो लाइव लेक्चर है। अब लाइव लेक्चर्स जो होता है वो कैसा होता है कि इंटरेक्टिव नहीं होता। अब ऑनलाइन एजुकेशन से स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे डर रहे हैं, पेरेंट्स भी डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उसे मालूम है कि ऑनलाइन लेक्चर में एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है। जैसे कि मोबाइल शुरू रख दिया और बच्चा कुछ भी कर रहा है, टीचर को कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तो ये हमारा सेशन है। हमारे लाइव लेक्चर्स में क्या होता है कि कंपलसरी हर स्टूडेंट की वीडियो शुरू रहती है, नंबर 1। नंबर 2 वे कम्युनिकेशन होता है। 2 वे कम्युनिकेशन किस तरह से? अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो चैट में लिखता है सर डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उनका माइक शुरू करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 उसे पेन का आइकॉन भी मिलता है। अब बच्चे को जो भी डाउट है वो डाउट बता पाएगा, और दूसरी चीज पेन से लेकर उसे मोबाइल में इस तरह से हाईलाइट कर पाएगा कि ये पर्टिकुलर स्टेप मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज ये स्टेप मुझे समझा दीजिए। ठीक है, बच्चा अपने घर पे बैठकर हाईलाइट कर पाएगा। तो इससे क्या होता है, टीचर को भी पता चलता है कि क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, और बच्चे को भी पता चलता है कि हमारे जो डाउट, और हम हर बच्चे के डाउट सोल्व करते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि इतने सारे बच्चे और कैसे डाउट सोल्व करोगे? दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो होते हैं वो लाइव लेक्चर का टाइमिंग डिफरेंस रखते हैं। और अब जो ये लाइव लेक्चर रहे वो मितेश सर ले रहे हैं और दूसरे कुलदीप सर ले रहे हैं। अब मैं इन टीचर का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूं, पहले मैं लेता था, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं लाइव लेक्चर दूं, क्योंकि अभी पेंटेड को हम बहुत आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी बड़ौदा में भी ऑफिस है, राजकोट में भी और अहमदाबाद में है। तो क्या है कि वीक में हर जगह पे 2-3 दिन रहना होता है। तो भावनगर में अपने घर में भी शायद एक वीक में 1 दिन से ज्यादा नहीं रह पाता, क्योंकि इन 3 जगह पे मुझे जाना होता है। तो लाइव लेक्चर जो ये टीचर्स ले रहे हैं, मितेश सर, उसमें से मितेश सर एक ऐसे हैं जिसको 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बोर्ड के पेपर चेक किए हुए हैं, बोर्ड के पेपर निकाले हुए हैं, और वो बोर्ड पेपर चेक करके हेड रह चुके हैं। तो ये एक्सपीरियंस वाली फैकल्टीज है, वो हमारे लाइव लेक्चर। इसी तरह से कुलदीप सर है, कुलदीप सर को बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस है। वो 11th-12th जो इंजीनियरिंग करते हैं, ग्रुप वाले बच्चे को मैथमेटिक्स का डाउट सोल्व करवाने के लिए वेल नोन है। वो कोई भी डाउट बच्चे को आसानी से समझा देते हैं। तो वो हमारे डाउट सॉल्विंग फैकल्टीज है, और लाइव लेक्चर भी लेते हैं, और मितेश सर डाउट सोल्व करवाते हैं और लाइव लेक्चर लेते हैं। तो इस तरह से लाइव लेक्चर्स होते हैं। अब दिक्कत ये होती है लाइव लेक्चर में कि स्टूडेंट्स का टाइम डिफरेंट होता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो हमारा लाइव लेक्चर 11 बजे का है, लेकिन वो 11 बजे फ्री नहीं, या तो कोचिंग क्लास में है, या स्कूल में है, या पढ़ने का मूड नहीं है, ये बहुत कुछ हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, तो हम 5 दिन के, यहाँ पर आप देख सकते हो, पाछला 5 दिवस ना लेक्चर, उसके नीचे वो स्क्रॉल करेगा तो 5 डेज के उसे लेक्चर्स मिलेंगे। ये 5 दिन के लेक्चर उसे रिकॉर्डेड मिलेंगे, जो कभी भी 24/7 देख सकता है। लाइव लेक्चर इंटरेक्टिव है, बच्चा घर से पूछ सकता है, अगर वो डाउट कहता है तो उसका डाउट सोल्व होता है, उसे पेन भी देते हैं, वो हाईलाइट भी कर सकता है, और 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। बहुत ही अच्छी तरह से हम ये काम करते हैं। ठीक है, और रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स भी होते हैं। तो आई होप कि आपको सेकंड फीचर्स भी समझ में आ गया होगा। पहला था सॉल्यूशन और दूसरा था लाइव लेक्चर। समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes. अब थर्ड वन इज दैट, आप यहाँ पर देख सकते हो IMP क्वेश्चंस। ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स है। अब कुछ बच्चे मुझ जैसे होते हैं। अब जब मुझ जैसे बोल रहा हूं ना, तब आप बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगेगा ये मेरी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैथ्स हमें पढ़ने में बहुत ही मुश्किल होती है। अब हमें सब कुछ करना भी नहीं होता, हमें 100 आउट ऑफ 100 नहीं चाहिए, हम बस पास हो जाए ना, वही हमारे लिए बहुत है। ठीक है ना? अगर हमें 33 मिल जाते हैं तो हमें 34 नहीं चाहिए, हमें 33 ही चाहिए, यानी कि पास हो जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर हर दिन 3 वीडियोस रखते हैं जो IMP होते हैं, जो बोर्ड में पूछे गए होते हैं या बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम सिर्फ 3 वीडियोस रखते हैं। एक वीडियो 7 मिनट्स का होता है, 3 वीडियोस जो होता है वो 21 मिनट्स का होता है। यानी कि अगर बच्चा हर दिन मंडे से लेकर सैटरडे तक 20 मिनट मैथ्स की पढ़ाई करेगा, तो वो 2.5 महीने में पूरा मैथ्स का सिलेबस खत्म कर देगा। पूरा मैथ्स का अगर ये कर लेता है, हर दिन देखता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में से कम से कम बच्चे को 80 मार्क्स आएंगे।
क्योंकि सब कुछ हम इसमें कवर कर लेते हैं सिर्फ रोज की 20 मिनट काम करने से। यानी कि आप सिर्फ 20 मिनट पढ़ो और 2.5 महीने में मैथ्स खत्म करो, अच्छा मार्क्स ले आओ। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये हर दिन वीडियोस जो है अपडेट होते रहते हैं। पिछले दिन के जो वीडियोस होते हैं वो निकल जाते हैं, हर दिन नए होते हैं। अब दूसरी चीज, मान लीजिए आज मैंने वीडियोस नहीं देखे तो वो कल मुझे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमने फीचर्स इसीलिए रखा हुआ है कि आज का 20 मिनट काम आज ही करना है। ठीक है, तो हर दिन ये 3-3 वीडियोस जो है वो अपडेट होते रहते हैं। चलो ये क्लियर है। आईएमपी क्वेश्चन 20 मिनट पढ़ो और 2.5 महीने में मैथ्स का सिलेबस खत्म करके अच्छा मार्क्स ले आओ। ठीक है, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। ये 2-3 लोगों की आवाज आ रही है। अगर ज्यादा लोग अगर बोलना नहीं चाहते, अगर चैट में भी लिखेंगे तो मैं पढ़ता रहूंगा और मैं आंसर देता रहूंगा। और मेरी तो ऐसी आदत है, तो मेरी निगाह हर लोग पे होती है, कौन बोल रहा है, क्योंकि मैं सब देख रहा हूँ। तो मुझे अभी 2-3 लोग दिख रहे हैं जो मुझे आंसर दे रहे हैं हर चीज के। तो मैं चाहता हूँ कि और भी लोग जुड़े और अच्छी तरह से आंसर दे तो मजा आए। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है इसमें एक स्लाइड छूट गई है, शायद मुझसे डिलीट, अभी तक मैंने वो रिप्लेस नहीं की। हाँ, इसके बाद जो है वो ये वाली है, मैं आपको बता दूं, आस्क योर डाउट। ये इसमें है, ये वाला फीचर्स अगर मैं आपको स्लाइड ओपन करके बताऊं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 4th आस्क योर डाउट। आस्क योर डाउट में क्या होता है बेसिकली, अगर स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो आस्क योर डाउट में क्लिक करेगा तो हमारा व्हाट्सएप खुल जाएगा। बच्चे को जो समझ में नहीं आ रहा है वो हमें वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दे, या फोटो भेज दे, या टाइप करके भेज दे। हमारे कुलदीप सर और मितेश सर उनके जो बच्चों के डाउट होते हैं वो डाउट सोल्व करवा देते हैं। और नंबर 2, सैटरडे जो हमारे 2 घंटे का सेशंस होता है, वो मोस्ट कॉमन जो डाउट्स होते हैं वो सबको लाइव लेक्चर में सोल्व करवाते हैं, ताकि जो बच्चे डाउट नहीं पूछते उसे भी ये जो है प्रॉब्लम उनकी शायद हो तो ये सोल्व हो जाए। इसलिए सैटरडे में डाउट सेशन रखा हुआ है और उसमें डाउट सोल्व करेंगे जो मोस्ट कॉमन हो। बाकी हम हर एक बच्चे को जो उनका डाउट होता है वो डाउट सोल्व कर देते हैं, और सैटरडे उनका जो लाइव लेक्चर में भी वो डाउट दूसरी बार सोल्व करवाते हैं। ठीक है, तो ये आज के डाउट हो गया। और अब जो उसके बाद जो है ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है, क्वेश्चन पेपर। अब बच्चे को प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। सपोज मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे ने 450 रुपीज की गाइड ली, तो आप सबने भी ऐसा किया होगा कि जब एग्जाम के लास्ट 3 मंथ बचे हो या 2 मंथ बचे हो तो हम पेपर सेट लेने जाते हैं। अब वो पेपर सेट फिर से 200-250 रुपए का हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। ओके, अब वो पेपर सेट मिल तो जाते हैं, अब उनका पीछे फाइनल आंसर भी होता है, लेकिन वो आंसर आया कैसे वो किसी को पता नहीं होता। वो सिर्फ पेपर सेट करने वाले को, जो जिस पेपर से कंपनी ने सेट किया उसे पता होता है। और बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो वो पेपर सोल्व करवाते हैं। हमारे भी ऐसे बहुत सारे डाउट हो गए जो आपको कभी ना कभी रहे होंगे, लेकिन किसी ने सोल्व नहीं करवाएगा। और बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं वो हमसे सोल्व ही नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर देते हैं ताकि बच्चे को एक्स्ट्रा खर्च ना करना पड़े, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ये बिल्कुल बोर्ड की पेपर स्टाइल के मुताबिक होता है। तो अभी क्या करना है, बच्चे को जो जो हम सिखाते जा रहे हैं, हम बताते जा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर नंबर 1 में सम नंबर 19 और 18 जो सम है, जो हमने आज मेथड की है, उस हिसाब से उस मेथड से आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए। ओके, तो हम बच्चे को हम क्या करते हैं, इसकी हम प्रैक्टिस करवाते हैं। ऐसे 5 क्वेश्चन पेपर होते हैं। ठीक है, अब ये अपडेट होते रहते हैं। पिछले जो पेपर है वो निकलते रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इजी पेपर से हार्ड पेपर होने लगते हैं और बच्चे को जो हम इस तरह से सोल्व करवाते हैं। ये एक चीज हो गई। नंबर 2, हम दूसरी चीज क्या करते हैं, ये हो गया पेपर सॉल्यूशन। अब पेपर तो रहते हैं लेकिन हम उनके पूरे वीडियोस के सॉल्यूशन अपलोड कर देते हैं। यानी कि हम अगस्त से अपलोड करना शुरू करते हैं। पहला वीडियो अगस्त को होगा पहले पेपर का, फिर सितंबर को, फिर अक्टूबर को, फिर नवंबर को और फिर दिसंबर को। इस तरह से हर महीने एक पेपर के पूरे 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, जिनका तकरीबन 3 घंटे का वीडियो होता है, वो सब इसमें अपलोड हो जाता है, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आया हो और कोई सम सोल्व ना कर पाया तो उसे पता चले कि ये सम इस तरह से, इस मेथड से सोल्व करना था। तो इसीलिए हम क्वेश्चन पेपर भी देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनके सॉल्यूशन के वीडियोस भी देते हैं ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ब्लूप्रिंट, जिसमें पेपर स्टाइल रहती है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होता है, ये सब रहते हैं। जो गुजरात गवर्नमेंट का है वो इस फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में ही रहेगा, और ताकि बच्चा जो है आसानी से एक्सेस कर पाए और उसे किसी के साथ शेयर कर सकता है या फिर डाउनलोड भी कर सकता है। और ये एक चीज बहुत ही अच्छी है जो है टेस्ट। अच्छा,
टेस्ट जो होती है वो हर संडे को होती है। सबसे बड़ी चीज, टेस्ट खत्म होने के बाद तुरंत उसे उनके मार्क्स मिल जाते हैं, यानी कि 40 में से कितने हैं। जो सम गलत हुए हैं मंडे को हम वो सोल्व करवाते हैं। अब बहुत स्कूल में और ट्यूशन क्लासेस में पेपर तो ले लेते हैं, लेकिन जो सम गलत हुए वो हमें कोई सोल्व नहीं करवाता है। तो हम क्या करते हैं, हर संडे टेस्ट भी लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मंडे जो बच्चे के जिस क्वेश्चन गलत हुआ वो सारे सम हम उसे सोल्व भी करवा लेते हैं, ताकि बच्चे को कोई डाउट ना रहे और उसको जो सम नहीं आए वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाए। ओके, फिर उसके आगे एक और चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा पेंटेड मटेरियल है। और नीचे आप देख सकते हो हमारे यूआई में, मैं फिर से ये यूआई ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ स्कैन का ऑप्शन आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। अगर वो बच्चा स्कैन पर क्लिक करता है तो हमारा कैमरा शुरू हो जाता है। अब ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। आप सबने गाइड यूज की होगी, आप सबको कभी ना कभी किसी सम को लेकर आप बैठे तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि पहला स्टेप तो समझ में आ गया, दूसरा तो आ गया, लेकिन तीसरा स्टेप आया कहाँ से, कट कैसे हुआ, ये सिंप्लीफाई किस तरह से हुआ, જેને ગુજરાતીમાં કહે કે સાદું રૂપ કેવી રીતના આપ્યું। तो ये सारी दिक्कत और ये सारा टेंशन हमें रहता है, कंफ्यूजन रहता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो ये जो मटेरियल, ये फिजिकल मटेरियल है 288 पेज का। अगर बच्चे को कोई सम समझ में नहीं आता है तो हमारी एप्लीकेशन से क्या करना है, स्कैन का आइकॉन क्लिक करना है, कैमरा ओपन हो जाएगा, जो भी सम समझ में नहीं आता है जस्ट उसे स्कैन करना है और उनके वीडियो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा मटेरियल में आपको दिखा देता हूँ, एक ही मिनट। चलो, ये मेरे सामने एक मटेरियल है, आप देख सकते हो, ये हमारा मटेरियल आप देख सकते हो। कोई भी सम बच्चे को समझ में नहीं आता है, जस्ट क्या करना होता है, सम समझ में नहीं आता है, स्कैन करना होता है, स्कैन करेंगे उस सम का वीडियो शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी एप्लीकेशन है, बेसिकली मैथ्स की एप्लीकेशन है। अब जो हम सितंबर में अपडेट देने जाने वाले हैं उसमें हम हर सब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं, साइंस भी कर रहे हैं, एसएस भी कर रहे हैं, यानी कि 7 सब्जेक्ट जो है वो सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे एप्लीकेशन में 15 सितंबर को हम जो अपडेट देने जाने वाले हैं उसमें ये सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। ओके, लेकिन फिलहाल अभी जो है वो मैथ्स के लिए है। अब पॉइंट नंबर 2, ये सारी आपने एप्लीकेशन समझ ली, जिसमें पहला सॉल्यूशन था, जिसमें एनिमेशन वीडियोस थे, लाइव लेक्चर था, आस्क योर डाउट थे, आईएमपी क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर थे, क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन था, फिर ब्लूप्रिंट थी, फिर टेस्ट थी, और फिर हमारा मटेरियल जिसे बच्चा स्कैन करके कोई भी सम में अगर दिक्कत है तो उसे क्या कर सकता है, वो समझ सकता है और सोल्व कर सकता है। अब उनकी प्राइस, अब मेरा जो कॉन्सेप्ट था, एक तो मॉडर्न एजुकेशन देना है, अच्छा एजुकेशन देना है, एनिमेशन वाला एजुकेशन देना है, लेकिन सस्ते में देना है, हमें ज्यादा पैसे बच्चों से नहीं लेने। तब बायजूस जहाँ 50,000 में बेचता है या 40,000, वो देखता है फैमिली कंडीशन, वो किसी से 50 भी ले लेगा और किसी को 25 में भी बेच देगा, क्योंकि वो फैमिली कंडीशन देखता है और बाद में उनके साथ जैसा भी होता है वो डील करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस एप्लीकेशन की फीस रखी 5,000 रुपीज, जिसमें पूरे साल के लिए सब कुछ मिलेगा, मटेरियल सब कुछ मिलेगा। उसमें भी 9th स्टैंडर्ड में जितने परसेंटेज आए, क्योंकि ये हमने जनवरी में लॉन्च की थी ये एप्लीकेशन, तो 9th स्टैंडर्ड में जितने परसेंटेज उसका उतना डिस्काउंट दे देते हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के 9th स्टैंडर्ड में 90% है तो ये सारी एप्लीकेशन में उसे 90% डिस्काउंट मिल जाता है, तो उसे सिर्फ 10% देना रहता है, यानी कि ये सब कुछ उसे 500 रुपए में मिलेगा। ये एनिमेशन वीडियोस, एवरीडे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर, ये सब कुछ मटेरियल सब कुछ सिर्फ 500 रुपीज में। ओके, अगर किसी के 80 आए तो उसे 1000 भरने थे। अगर किसी के 70 से कम है, यानी कि किसी के 50 है, 65 है, या 70 है, या 73 है, तो हम क्या करते थे, जिस बच्चे के 70% से कम मार्क्स हो उन सारे बच्चे को हम 74% फ्लैट डिस्काउंट दे देते, यानी कि 3,700 रुपए, 3,700 रुपीज उसे हम डिस्काउंट दे देते थे पूरे साल के, यानी कि जब तक एग्जाम तब उसको 1,300 रुपए भरने थे। लेकिन अब जो बच्चे आए 9th स्टैंडर्ड से, मास प्रमोशन उसे मिल चुका है और वो 10th स्टैंडर्ड में अभी है, तो अभी किसी के पास रिजल्ट नहीं है क्योंकि किसी ने एग्जाम ही नहीं दिए, सिर्फ मास प्रमोशन मिल चुका है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हर बच्चे के लिए, क्योंकि पहले जो जनवरी में जब हमने ये एप्लीकेशन लॉन्च की तब 3 या 4 महीने एग्जाम के बचे थे, अब पूरा साल है, तो हमने क्या किया, हमने हर बच्चे के लिए फ्लैट 74% डिस्काउंट रख दिया, यानी कि बच्चे को ये मटेरियल और एप्लीकेशन ये सब कुछ सिर्फ 1,300 रुपए में पूरे साल के लिए सब कुछ मिलेगा, सिर्फ 1,300 रुपए।
यानी कि 1300, ठीक है ना, अगर मैं सही गलत ना हूं तो। अगर एक बच्चा किसी ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस में जाएगा तो 15-20 हजार भरेगा, गुजराती मीडियम में है फिर भी। लेकिन ये सिर्फ 1300 रुपए में पूरे साल एनिमेशन के साथ, लाइव लेक्चर के साथ, सारे सपोर्ट के साथ, 1 रुपए का उसे एक्स्ट्रा खर्चा पेपर सेट का भी नहीं करना है, ये सब कुछ उसे देना है सिर्फ 1300 रुपए। मुझे बहुत सारे लोगों की वेरी नाइस, नाजमीन की आई, पुंजानी, फिर शुभम की कमेंट आई, नीलोफर की आई, चलो थैंक यू वेरी मच। तो इन सारे स्टूडेंट ने एक्सीलेंट ऐसा कमेंट किया, थैंक यू। सो अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक हमारे साथ 18,000 बच्चे जुड़ चुके हैं। यस, हमारी एप्लीकेशन 18,000 से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड की है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हमारे जो D2D की टीम है, यानी कि डोर टू डोर की टीम है, यहाँ पर है भावनगर में, राजकोट की है और बड़ौदा की है। तो उन लोगों को हम हर दिन 12 या 15 लीड देते हैं, यानी कि उसे पहले से टाइम दिया जाता है कि आपको इतने बजे यहाँ पर घर में जाना होता है, उनके पेरेंट्स जिस वक्त होते हैं, तो हम उसे लीड देते हैं। लीड देने के बाद आज एवरेज हर बंदा जो है 10 लोगों को, हमारे साथ 10 स्टूडेंट को जोड़ लेता है। तो ऐसे 12 लोगों की हमारी टीम है और हर दिन हमारे साथ 100 से 120 स्टूडेंट्स पेड जुड़ रहे हैं, क्योंकि इतना सस्ता, इतना अच्छा, पूरे गुजरात में किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। गुजराती में ऊर्जा लर्निंग ऐप है, लेकिन वो व्हाइट बोर्ड में वो लाइट बोर्ड में काम कर। लाइट बोर्ड क्या होता है कि जिसमें पीछे ब्लैक इस तरह से कर्टेन होते हैं, आगे एक आईना होता है, यानी कि शीशा जिसे कह सकते हैं, ग्लास होता है, और उसमें LED लाइट रहती है, और जिस तरह से बोर्ड में लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, यानी कि एनिमेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, लाइव लेक्चर्स भी नहीं होते, IMP क्वेश्चंस भी नहीं होते, सिर्फ वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर ही होते हैं और कुछ नहीं, मटेरियल भी नहीं। तो उन लोगों को वो सब कुछ मिलता है 1000 रुपए में, 1200 रुपए में, 2500 में। ये सारी अलग अलग एप्लीकेशन के अलग अलग भाव है, लेकिन ये हमारा सब कुछ पूरा पैकेज सिर्फ 1300 रुपए में हमारी कोई कॉम्पिटिशन कर ही नहीं सकता। इसलिए 18,000 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज 100 से 120 हर दिन हमारे साथ पेड सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे जुड़ रहे हैं। तो ये मार्केट, अब हम मार्केट बड़ा करना चाहते हैं अहमदाबाद के लिए। हम ये चाहते हैं हमारी D2D की टीम, यानी कि डोर टू डोर जाके सब कुछ काउंसलिंग करके ये सब कुछ समझाए और उसे बेच के, ऐसी हम टीम खड़ी करना चाहते हैं अहमदाबाद के लिए। तो मुझे ये आइडिया आया था कि क्या किया जाए, तो मैं प्लेसमेंट के लिए और इसके लिए मैं नेहा मैम से मिला। तो नेहा मैम ने मुझे ये प्लेसमेंट का तो कहा, साथ में ये भी मार्केट मैराथन का भी मुझे आइडिया दिया। तो मुझे ये अच्छा लगा, ताकि हम इसमें से प्लेसमेंट भी दे पाए, और जो काम करने के लिए ईगर है और अभी पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी हम अपने साथ जोड़ सके। इसलिए हमने ये मार्केट मैराथन का पूरा सेशन जो है ऑर्गेनाइज किया। तो आई होप कि आपको ये पेंटेड एप्लीकेशन अच्छी लगी होगी और आप अच्छी तरह से वर्क करोगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो हम अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आपके डाउट सोल्व करूंगा, आप बिंदास मुझे पूछ सकते हो। लेकिन जो हमें क्या करना है कि हमें एप्लीकेशन ज्यादा डाउनलोड करवाने के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि उस चक्कर में रहेंगे तो हम किसी को भी डाउनलोड करवा लेंगे। मैं अपने पेरेंट्स से भी डाउनलोड करवा सकता हूँ, अपने भाई से भी डाउनलोड करवा सकता हूँ, लेकिन एक चीज जो हमें करनी है वो है 10th स्टैंडर्ड के गुजराती मीडियम के बच्चों को ही एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी है और उसे ही कन्विंस करने की हमें कोशिश करनी है। ठीक है, तो बाद में आपको किसी भी चीज का कोई भी सपोर्ट चाहिए, मैं 100% आपके साथ जुड़ा रहूंगा। हमारे साथ विशाखा मैम है, वो भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। नेहा मैम तो बट ऑब्वियस, जब से हम पहले दिन से मिले तब से हम रेगुलर बेसिस पर कम्युनिकेशन करते रहते हैं और कुछ ना कुछ बातें होती रहती है रिलेटेड टू द मार्केट मैराथन एंड प्लेसमेंट। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ये 127 लोग, इतने सारे लोग, 139 से 127, यानी कि बहुत सारे लोग अभी तक जुड़े हुए। तो आपके लिए सेशन इंटरेस्टिंग रहा होगा, मैंने आपको बोर नहीं किया होगा ऐसा मुझे लगता है। और जितने भी 127 में से अगर 4-5 फैकल्टीज और मुझे निकाल दे तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि 120 स्टूडेंट, ठीक है, तो यानी कि 30 टीम अब ऐसी मेरे सामने है जो डेफिनेटली मार्केट को एनालिसिस करेगी, बच्चों की क्या नीड है वो समझेगी
उसे ऑनलाइन एजुकेशन में लेने में क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो भी आप एनालिसिस करके बताओगे और उसे सेल्स में कन्वर्ट करने की भी कोशिश करोगे। तो इसी होप के साथ मैं फिर से नेहा मैम को हैंड ओवर करता हूँ कि मैम प्लीज आप जो है आगे यानी कि आपको कोई क्वेश्चन आंसर या वगैरह कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो मुझे, किसी स्टूडेंट को। नेहा मैम अब आप सेशन को लीड करें। Yeah, thank you so much, Abbas bhai. So all the students, if you have any doubt and you want to ask any query, because you will have to be on fields from tomorrow. So we have already arranged few mentoring sessions of other people who have worked in the similar thing, selling online application. So they will also be helping you. But about this Pented or the pricing or how to sell anything, any query you want to ask, kindly drop in the chat box so that we can ask it to Mr. Abbas Meghani. Yeah, yes, Manish, you want to ask any question? Yes, Manish ma'am. Thakur? Yeah, please Yes, go ma'am. ahead. सर वो IMP सम्स में जो आप वीडियो बना रहे हो वो वीडियो बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं क्या? नहीं, वो सिर्फ देख सकते हैं। अच्छा, वो डाउनलोड क्योंकि वो डाउनलोड कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि वो शेयर भी कर पाएंगे और हमारी जो मोनोपोलीज हैं वो अपने हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए। थैंक यू। Yes, Vidhi. सर ये एप्लीकेशन ओनली अहमदाबाद के बच्चों के लिए, ये सारी जगह पे गुजरात सारी जगह ऑल ओवर गुजरात कहीं भी। Ma'am, Yes. is this application available in all the device? I mean iOS also? No, this application for only Android, because we are targeting Gujarati medium students, and Gujarati medium, I think there are the more than 90% the all Gujarati medium student have only Android phone, because I think his financial level is not good. If there are some students they have the financial level is good, then उनके पास Android mobile भी होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। Okay, sir. Thank you. Yeah, there is a question in the chat box. After that, Rutvik, you can ask. So this question is from Harshil, and he is asking, sir, as you told that you will start other subject that will be included in the package, or I think he wants to ask that will it be priced same or it will be priced differently? जो हम इसके बाद जो हम ऐड करेंगे तो उसमें सारे सब्जेक्ट फ्री रहेंगे एक्सेप्ट साइंस के, क्योंकि साइंस का उसे अलग से पैकेज लेना होगा। मैथ्स और दूसरे सारे सब्जेक्ट फ्री रहेंगे, सिर्फ साइंस का उसे पे करना होगा। Okay. Rutvik, you wanted to ask something? Yeah. So can I ask you in Gujarati, as we can understand in that? Yeah. Sure. Sir, આપણે એમની પાસે ડાઉનલોડ કરાવડાવીએ ગમે એની પાસે, તો પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યાં સુધી એમને ખાલી ડાઉનલોડ કર્યું હોય તો ત્યાં સુધી અમને કેટલું જોવા મળશે? 1.1 એક્સરસાઇઝ અને 2.1 એક્સરસાઇઝ, આ બે એક્સરસાઇઝ જોઈ શકશે ખાલી। ઓકે, અને જ્યારે ઈ પૈસા અને રજીસ્ટર કરી નાખે પછી આખું મળી જશે એમ? પછી આખું મળી જાય તરત। ઓકે, ગ્રેટ। કારણ કે સર ઈ પહેલા આ જ કેવું પડે એટલે ઈ કેટલું જોઈ શકે ને એટલે ઇંગ્લિશ તે પછી મને સમજાય। અને બીજી વસ્તુ એ છે કે અગર જ્યારે પણ કોઈ પણ આપણે ખરીદીએ છે તો એનું એડ્રેસ આપણે લઈ લઈએ છીએ અને 1 અથવા તો 2 દિવસમાં એના ઘર સુધી આપણે મટીરીયલ પણ ફ્રીમાં એને આપણે કરાવી દઈએ છીએ। બીજી નંબર 2 કે પેમેન્ટ ગૂગલ પે, પેટીએમ, ફોન પે કંઈ પણ કરી શકે અને કેશ ઓન ડિલિવરી પણ કરી શકે છે, સીઓડી પણ કરી શકે છે। અગર કોઈ કન્વેન્સ થાય છે તો એને મટીરીયલ મળે તો એમને ડાયરેક્ટ પોસ્ટમેનને પૈસા આપવાના રહેશે, એને બુક મળી જાય, ફોટો પાડીને મોકલી દે, પોસ્ટમેનને પૈસા આપી દે એટલે આપણે એનું શરૂ કરી દેશું। ગ્રેટ સર। Okay, anyone else? Any question? तो मैम लाइक सारी क्वेरीज तो वैसे ही सॉल्व हो गई है। Yes, Tirth. Yes, ma'am. Tirth मैम यस मैम, सर से क्वेश्चन था कि जो मतलब मेरे 10th में 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी है यही लाइन का, टीचिंग लाइन का, और मेरे 100% रेशियो भी है। तो मैं मेरे लिए एक क्वेश्चन था कि सर मतलब आपके वहाँ जगह हो तो पार्ट टाइम के लिए आप अपना रिज्यूम मुझे भेज दो, नेहा मैम से मेरा नंबर ले लो, ठीक है, या इंस्टाग्राम में कहीं भी तो हम जुड़ेंगे। और मैं अहमदाबाद शायद नेक्स्ट वीक हूँ तो आप आओ ऑफिस पर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।
Anyone? Any other question? तीर्थ, मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, अगर मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है तो यार कॉमर्स क्यों लिया? सर बड़े भाई ने साइंस ले लिया था, अब दोनों साइंस ले लेंगे तो फिर घर में साइंस ही होगा इसलिए। अच्छा, तो साइंस का प्रॉब्लम उसे पता था। वेरी गुड, दैट्स अ स्मार्ट मूव। Neha ma'am, Tirth is very opportunistic. I know. Yeah, any other question? All right. See, sir, ma'am. yes, Harsh. Yeah, please go. So, sir, આપણે અત્યારના જે બધાની જો સ્ટુડન્ટ્સને ડાઉનલોડ કરાવવાની છે એપ્લિકેશન્સ અને પ્રમોટ ને અવેરનેસ ફેલાવવાની છે, તો એમાં જ્યારે કરાવતા આપણે ડાઉનલોડ કરાવતા આપણે એમને ઓલરેડી મેથ્સનું જ કંઈ કહેવાનું છે કે તમે એવું કહી શકો કે ભાઈ લાસ્ટ યર જે છેલ્લી બોર્ડની એક્ઝામ હતી, લાસ્ટ યર તો માસ પ્રમોશન મળી ગયું, એટલે લાસ્ટ જે બોર્ડની એક્ઝામ હતી એ પર્ટિક્યુલર એક્ઝામની અંદર 3.5 લાખથી વધુ લોકો મેથ્સમાં ફેલ થયા છે, રાઈટ? અને 3,17,000, 3.5 ની 3 લાખથી વધુ 3,17,000 લોકો મેથ્સમાં ફેલ થયા છે. તો હવે મેથ્સમાં સૌથી વધારે ડિફિકલ્ટીઝ હોય એટલે આપણી જે એપ્લિકેશન છે સ્પેશિયલ મેથ્સ એપ્લિકેશન છે. આપણે એવી રીતના એને એક્સપ્લેન કરવાનું શરૂ કરીશું અને પછી એના બધા ફીચર્સ સમજાવશું તો એ સમજી જશે. What I'll do is the group that is created, I will forward the group joining link to all the students. You can join the group, and then in that group I will forward all the material, the PPT that Abbas sir has sent and other material. I'll send it to you all over there, and in case after this session also you have any doubt, you can put it in that group. Okay? Yes, Jugal. ये एक चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आप जहां पर एक्सप्लेन करने जा रहे हो अगर वो कन्विंस होता है तो मैं यहाँ का ऑफिस का नंबर आपको दे दूंगा 7272868671। आपको जस्ट उसमें कॉल करना है, उसे कहना है कि इनकी एप्लीकेशन शुरू कर दो, तो हम उनकी एप्लीकेशन जो है शुरू कर देंगे, ठीक है? तो उसमें कोई ज्वाइनिंग प्रोसेस में कुछ है नहीं। सो इतना, क्योंकि जब साइन अप करेगा, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन आप भी डाउनलोड करेंगे तो पहला पेज जो ओपन होगा साइन अप का होगा, जिसमें आपको अपना नंबर, अपना नाम, ईमेल एड्रेस जरूरी नहीं है, पासवर्ड कोई भी सेट कर दो तो आप साइन अप कर लोगे, ओटीपी आएगा, आप एप्लीकेशन के होम पेज में आ जाओगे। तो जिस स्टूडेंट ने ये सब कुछ डाला होगा हमारे पास वो डेटा होगा, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा कि अपने एडमिन पैनल से सिर्फ उसे एक्सेप्ट करना होगा, यस देना होगा, तो उनका जो है वो पेड सब्सक्रिप्शन में नाम आ जाएगा, ठीक है? तो ज्वाइनिंग प्रोसेस कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रखा है ताकि जल्दी से हम जो है सेल कर पाए। Okay. Jugal followed by Charmi followed by Harshil. Yes, Jugal, ask your question. Yes, sir. So आपने बोला कि आपके डोर टू डोर मार्केटर्स हैं, तो लाइक मार्केटिंग में आपका वही एक सोर्स है या आप डिजिटल मार्केटिंग या कहीं और से भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी कंपनी की? ओके, अब हम क्या कर रहे हैं वो मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। ये सारी प्रोसेस आप सब लोगों को भी काम आएगी जितने एमबीए कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम अपनी ब्रांड अवेयरनेस ला रहे हैं, किस तरह से हम काम कर रहे हैं। नंबर 1, हमने 5 टीवीसी बनाई हुई है और मेरी राजकोट में 3 लोग ऐसे मैंने हायर किए हैं जिनका काम यही है कि डिजिटल मार्केटिंग करना, यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पे मार्केटिंग करना। तो उसे हम क्या करते हैं कि हर दिन एक नई पोस्ट बनाते हैं और उसे प्रमोट करते हैं। अब हम उसमें टारगेट ऑडियंस सेट करके रखते हैं, फॉर एग्जांपल 14 to 16, यानी कि जो बच्चा 10th स्टैंडर्ड में होगा या 9th में होगा उसी बच्चे को एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी, ठीक है? 14 to 16 ले लो तो वो या तो वो 9th में होगा या तो 10th में होगा, ठीक है? तो वो बच्चा क्या करेगा, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद साइन अप करेगा, तो साइन अप करेगा या हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये नाम है, ये नंबर है। अब हमारे यहाँ ऑफिस में टेलीकॉलिंग की टीम होती है। अब इस टीम का काम क्या होता है कि वो नंबर वहां से जो जिन लोगों ने साइन अप किया उसे कॉल करते हैं, उससे पेंटेड एप्लीकेशन डाउनलोड की तो उसमें क्या उसे कोई दिक्कत आ रही है, अच्छी से एप्लीकेशन चल रही है, या हम ऐसे बात करते हैं तो फिर वो कहता है कि नहीं अच्छी चल रही है, ओके। तो फिर उसे हम कन्विंस करते हैं गूगल मीट या तो जूम में मीटिंग करने के लिए, या फिर उसे कन्विंस करते हैं कि हमारी D2D टीम जो है उसके घर पे जाकर उसे समझा पाए। तो उनके पेरेंट्स कब होंगे, अगर D2D है तो हम ये पूछ लेते हैं, उनसे टाइम ले लेते हैं, तो बाद में हमारी D2D की टीम वहां पर जाती है और उसे सारी एप्लीकेशन एक्सप्लेन करती है।
नंबर 2, जहां पर हमारी D2D की टीम नहीं है, फॉर एग्जांपल सूरत में नहीं है, अहमदाबाद में नहीं है, बहुत सारी जगह पर, गुजरात में नहीं है, अभी दो जगह या 2 जगह पर है अभी, ठीक है। तो बाकी की जगह पे हम क्या करते हैं, उसे हम लिंक भेज देते हैं, जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन का डेमोस्ट्रेशन बताया, इसी तरह से हम जूम में पेरेंट्स और स्टूडेंट को एप्लीकेशन का डेमोस्ट्रेशन बताते हैं, फिर उसे कन्विंस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशन उसे एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद की जो टीम होती है वो होती है कन्विंसिंग टीम, यानी कि उस टीम का काम ये होता है, पहली टीम टेलीकॉलिंग, जो कॉल करके उससे मीटिंग सेट करेगी। दूसरी टीम जो होगी वो मीटिंग करेगी, या तो वो घर पे जाके करेगी या फिर ऑनलाइन करेगी। तीसरी टीम जो हमारी होती है वो क्या करती है, उसे सेल करती है, उसके पेरेंट्स को कन्विंस करती है कि आप कब खरीदने की सोच रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, आप पेमेंट किस तरह से करोगे। तो उनके जो डाउट होती है, जो डिफिकल्टीज होती है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उसे हम सोल्व करते हैं और उसे सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भावनगर में जो हमारी टीम है, जिसमें हर टीम में 4-5 लोग हैं, और हर दिन हम यहाँ से ही ऑनलाइन सेलिंग, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ D2D नहीं हुआ लेकिन ऑनलाइन सेलिंग हम 45 से 50 हर दिन हम कर लेते हैं। थैंक यू सर। ओके सर, मुझे पूछना था दैट आपने कहा डाउनलोड करवाना है, तो डाउनलोड का डेटा कैसे मेंटेन करना है, उसका कुछ क्राइटेरिया है? डाउनलोड का अभी तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपने जिन स्टूडेंट से डाउनलोड करवाया है तो आप सिर्फ उनका नाम ले सकते हो कि मैंने इस स्टूडेंट का नाम, यानी कि ये उनका नाम है और ये इनका नंबर, हमने इससे डाउनलोड करवाया है। तो हम जो है अपनी एडमिन पैनल से उसे मैच कर देंगे और डेटा जो है नेहा मैम को हम फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, एंड सर आप जितने भी टास्क एक बार रिपीट कर सकते हो फिर से? नंबर 1 जो पहला टास्क है वो एनालिसिस करना है हमें कि गुजराती मीडियम के बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है। नंबर 2 कि वो ऑनलाइन पढ़ने में उसे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये हमें सिर्फ एनालिसिस करना है, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर हमें एनालिसिस करना है, पेरेंट्स की क्या सोच है, स्टूडेंट की क्या सोच रहे हैं, वो क्यों जुड़ना चाहते हैं, क्यों जुड़ना नहीं चाहते, क्या दिक्कत आ रही है, क्या बग है, ये हमें करना है। नंबर 2 दूसरा टास्क ये है कि हम उसे सेल में किस तरह से कन्वर्ट कर पाए, ये हमें देखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही 2 सिंपल स्टाक है। और दूसरी चीज हम ये भी कर सकते हैं कि हम किस तरह से उसके सामने अपनी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करें तो वो खरीदने के लिए जल्दी से कन्विंस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत अलग अलग टेक्निक्स होती है कन्विंस करने के लिए। तो हम किस वे में जाएंगे तो हम अच्छी तरह से उसे कन्विंस कर पाएंगे, ये हमें एनालिसिस करना है। See, broadly you have 2 tasks. One is you have to generate sales. Okay, while doing the sales you have to do research. What research? Research about the student studying in the 10th standard. So what are the difficulties, what are the need, what are the issues faced by the students in terms of online learning, what are the issues faced by parents, right, regarding the education of the student, what is their income level, will they be able to afford it or not, are they willing to buy this application or not, ठीक है। तो ये आपका रिसर्च का पार्ट हुआ, दैट विल हैपन अलोंग विद द सेल्स। दूसरा आपका टास्क है टू डेवलप इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, राइट, इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव बजट। सो बजट फ्रेंडली मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपको सजेस्ट करना, ये 2 मेन आपके टास्क हैं। डेफिनेटली। Charmi, any doubt in it? No ma'am, got it. Yeah. हर्षिल। यस सर, वो पूछना था कि अगर किसी को डाउनलोड के लिए कन्विंस कर रहा हूँ मैं, तो स्टूडेंट को अगर देखना, वो लाइव लेक्चर पहले अटेंड कर सकता है कि नहीं? वो क्या होता है कि लाइव लेक्चर नहीं ओपन होगा, जब वो पेमेंट करेगा फिर ही वो लाइव लेक्चर अटेंड कर पाएगा। पहले उसे सिर्फ 1.1 मिलेगा और 2.1, ये 2 एक्सरसाइज के जितने भी वीडियोज है वो एक्सेस कर पाएगा। ओके। Okay, another thing I would like to add, continuing with the query that Charmi had raised, so जो आप डाउनलोड करोगे या सेल्स करोगे उसके लिए बैकएंड से तो आपको डेटा मिलेगा ही पेंटेड लर्निंग से, so they will provide us data that which student got the download, how many downloads happened, but I will also forward the Excel sheet. I have prepared one format, so the faculty mentor who would be mentoring you will forward you the Excel sheet. We have put the key points that you have to add. Under that you have to keep your own record. So
what is the name of the student, contact number, which area the student belongs to, which school the student belongs to, all those things. So that you also have the record, we also have the record, and we can match that record with the data provided by Mr. Abbas to us. Okay. Yes, Anmol. Sir, my question is, as of now, आपकी टीम में अभी तक कितने members हैं? अभी हमारी टीम में अगर गुजरात के अगर आप मानो तो 65 से ज्यादा, मोर देन 65, और पूरे इंडिया के मिला लो तो 72. एंड सर, ये सब जितने भी मेंबर्स हैं वो लाइक वॉलंटियरली काम कर रहे हैं या इनके लाइक पेमेंट है? नहीं, वो सब सैलरी बेस पर है. ओके, थैंक यू सर. Any further query? Okay, if students you want to think take some time, if you have some query you can think. In the meantime, I will explain you the process. So after this session gets over, by 6 o'clock I will forward you, I'll close the registration link now, okay? And by 6 o'clock I will forward you the list of your faculty mentors. You have to immediately contact them and start working. Right, your faculty mentors will be providing you all the data, the PPT of Pented, right, which has the details, the Excel sheet that I just mentioned of, and you will have to constantly be in touch with your faculty member to seek guidance and help. Wherever you are stuck, your faculty mentor shall help you. Tomorrow and day after tomorrow, we will be having mentoring sessions of the industry experts. So we have our alumni, we had our alumni working in different online learning application. Now they are working with some other brands, but they have worked very rigorously and achieved something and then shifted to other brands. So we have arranged those sessions for you all. They will be mentoring you and guiding you how you can approach the students and the parents, right? How you can communicate with them, how you can close the sales, what will be the queries that you will be coming and you can solve. So all the mentoring will be provided to you by us, not only in terms of from our end, but from the industry end also. Okay, then we'll be providing you one day to prepare and work, and you also have to parallelly work along with all these things, but one dedicated day will be provided to you for developing your strategy, preparing the presentation. Then you will be having a screening round, okay, internal screening round, where your faculty mentors will go through the presentation that you are doing, and we'll be shortlisting few teams that will go in the finale. And the finale is on 6th and 7th, that will be taken by the company team, so Pented team. Okay, so this will be the process. In case you have any doubt, you can ask your faculty mentor about the process or about the task or anything related to Brahmastra 6.0. Okay, मैम एक चीज मैं भूल गया था. Can I explain? Yes, yes, sure. जो भी टीम सेल करेंगी वो 1300 में सेल करेंगी, लेकिन हर उसे 10% इंसेंटिव मिलेगा, जो मैं अपनी बात में भूल गया था. मान लीजिए कि आपने 2 दिन में 10 सेल किए या 20 सेल किए, यानी कि 13,000 का या 26,000 का जो भी काम किया, उसे आपको 10% जो होगा वो आपको इंसेंटिव मिलने वाला है हर किसी को. ठीक है, तो वो ये मैं एक भूल गया था, तो मैंने ऐड कर दिया. सर इंडिविजुअली और ग्रुप में? ग्रुप. No, we will be presenting the group data. और जो विनर प्राइज है वो तो आपको मैम ने बताया होगा 10, 6 और 4, तो वो तो ग्रुप में है ही. So whatever task is there, it is in group. So whatever data of sales we will be forwarding to Pented team, it will be again in group. So the prize money and the incentive will be provided to us as per the group, and then you can redistribute as we do it in all the hackathons, Rutvik. Sure, ma'am. Yeah. Okay, any other query? I think Charmi, you again raised your hand in between when I was talking. So you have any query? Yes, ma'am. I was going to ask you about deadlines only. Okay. Yes, Manish.
नो मैम, गलती से हो गया था। Okay. Anyone has any other doubt? All right. Then in that case, all the best to all of you. Okay. Work hard and give your best shot. Be proactive in this work. Let not us push you, but you have to catch hold of all of us, Mr. Abbas, all the faculties, right? So you have to be in touch with us, and you have to constantly ask us that we are planning this, we are thinking this, is it right or not? Or wherever you have any doubt, constantly be after us, right? And work very hard, try to develop and grab as much as possible, right? So all the best to all of you, and we will be forwarding you the link of the mentoring session soon, and I'll be forwarding you the list of faculty mentors also by 6 o'clock. Okay, so thank you so much, Abbas Bhai from LJ Institute of Management Studies and the marketing team, and all the students for giving us this opportunity for working with your company and learning and developing the skills in the area of marketing. Thank you so much once again. Thank you so much all the faculty members, and thank you so much all the students. Again, all the best to all of you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Abbas bhai, I'll end the session here. Okay, okay, ma'am. Thank you so much.